Welcome to this chat show Face to Face. This is a second episode in the third season. This is a program which we started in the year 2022, and we have entered into the third edition, the third year of this program. This program has been launched and is being executed by DME Media School. DME Media School is part of Delhi Metropolitan Education. Delhi Metropolitan Education, DME has three schools besides DME Media School. The other two schools are DME Law School and DME Management School. We offer four different programs, all bachelor's program. Besides BA JMC, there are BBA, BA LLB, and BBA LLB program. Which are offered by DME. We are an institute which is completely different in the sense the way we try to impart education, the way we try to take care of our students, and the way we rise up to the occasion whenever there is some kind of disruption. I'm referring to the kind of disruption which happened during this COVID-19, and it is almost 2 years when things were adversely affected, but we always try to maintain the quality of education. We try to maintain that connect with the students, and in fact this program is again a creation to break that deadlock which had happened in the year 2022. And as far as imparting education is concerned within the classroom or outside the classroom, and since most of the teaching was happening during these 2 years in the online mode, so we try to infuse all those things which could make the online education interesting, whether it was the video lectures that we tried to produce in the year 2022, and thereafter we were banking on the PPTs and all and the study material which could be provided to the students. We took care all of that, and besides that we always, as I told you already, we always believe in compassion, we believe in engagement, and that is how we try to create that kind of atmosphere which is very conducive for learning in DME Media School. So let us have a look as to what all DME Media School has been doing recently as far as imparting education and engagement is concerned. In DME, we believe in engagement and empowerment of students. And since the time this COVID-19 struck in 2020, we intensified this whole process. For the education sector, it was a big challenge. At DME, our small dynamic team decided to take this challenge head-on. We organize different kind of programs, different webinars wherein the distinguished people from the industry and other walks of life, they are invited to interact with the students. We try to keep them engaged in taking out newsletter, writing stories, editing stories, and not only that, they make posters, they make cartoons, they write pieces for the newsletter. Mentoring Cell at DME is a very unique feature in the ecosystem of education. While the subject teachers forge the knowledge domain strongly, it is the mentors who reach out to students in difficult times. During pandemic, when our students faced loss of their loved ones, home isolation, and several other family issues, mentors ensured that students remain cheerful, lively, and stay connected with us. We have ensured that our students are treated with compassion, warmth, and gentle touch. And it has been our endeavor to treat all the academic activities of our students, which includes PSDA, internal assignment, and various other curricular activities accordingly. Research Cell also pays huge emphasis on interdisciplinary nature of research. In order to promote this, the research centers of the Research Cell were also motivated to join with each other and conduct research activities for students, faculties within DME and outside DME. While the strong academics and great industry connect
is building great lawyers, media persons and managers at DME. We at Mentoring Cell are enabling these future leaders to be compassionate, emotionally strong and resilient for any times to come. We empower the students. All the schools of DME, they have their students council. In DME Media School, this council is part. They organize the program themselves, they take their own decisions and they mobilize the students for all the good cause. Art has the power to unite and connect during the times of crisis. Bringing people together, sharing, soothing and inspiring are powers of art, which have been made empathically obvious by the DME cultural societies during the COVID-19 pandemic. By taking different innovative approaches in organizing various virtual competitions and events in which the students of DME have taken part with great enthusiasm and proved that DMEians are unstoppable. Care with compassion is motto of DME. During Corona period, we were always with our students. Their well-being is primary for us. We take care of our students. We met the expectations of the students, of the parents and above all of the industry. The placements this year were better than those of the previous years. DME is committed to supporting its students in all possible ways. So welcome back to Face to Face. Now moving ahead, if I can tell you something more about DME Media School, because DME Media School is again one of the most distinctive media school, not only in the country, but even outside India. And whatever we do it with a global perspective. And if I can name the two flagship programs that we do in DME Media School, that is International Conference ICANN and the International Film Festival SIFI. International Conference ICANN, this has completed 4 years of its existence, and shortly we are going to hold the 5th edition of this conference. And this is a conference wherein the almost the entire world is represented. And talking about SIFI, the International Film Festival, the last edition, which happened in December 2021, that was remarkable in the sense that we could get films from 111 countries, and the number of films exceeded 3,000. This itself shows the kind of popularity that our film festival has acquired within 3 years' time. Besides this, we also organize BG Varghese lecture series, which is a monthly lecture, a special lecture conducted by some eminent person in the media industry or in media academics. And what we did during this COVID period, we tried to invite the distinguished people from outside the country, because that was one advantage that was there to our disposal during this COVID period. So there have been scholars joining from the UK, from US, from Australia, from Iran. So that is how we conduct, because most of the activities that we do, the basic emphasis is on the learning of the students. And for us, the most important thing is, most essential thing is the participation of the students, whatever we do. And this particular program, Face to Face, this is a program wherein the students from all 3 years, the first year, second year, and third year, or if I can name the batches, there are students from 3 batches, from 2019 batch, from 2020 batch, and from 2021 batch. So this is the second episode, as I told you. So before beginning with this program, let us have a look who all are there in today's episode.
Welcome back again to Face to Face. Now, everybody has seen who all are there in today's session. So if I can again name the three participants from the 2019 batch, we have Prachi Sharma with us, who has earlier been also part of this program. And then from 2020 batch, we have Nandini with us, Nandini Srivastava. And then from 2021 batch, we have Sajal Mishra with us. So welcome you all in this program, face to face. And as we all know that it's a chat show, and it's a program with a difference because it is beyond the conventional relationship of the teacher and the taught. This is a forum wherein we can discuss varied things, both in formal and informal manner, but since it's a chat show, so it will be a free expression, expected a free expression from each one of you. So to begin with, and it is customary that we start with the senior most batch. And since we have very recently come out during this COVID-19 phase, which continued for 2 years. So during this period, we faced the lockdowns, the all online education, though sometimes in between, we tried to open and we had this offline classes or classes in the physical mode as well, like in the fresh batch of 2021, we started with the classes in the physical mode. Then we have again to shift to online, and then again we are back to normal, whether it's normal or back to new normal. All this can be discussed and debated. So my first question is based on this, that Prachi, when you joined, I mean, in your batch in 2019, everything was normal, and then in March 2020, the COVID-19 struck, so it was all shut. And then again, when you are in your last year, again, the things are back to normal. So you have experienced all kind of phases during your 3 years stay in DME and DME Media School. So how do you look at this whole experience of the last 2 years, or rather 2.5 years since the time you have been there in DME? गुड आफ्टरनून सर कॉलेज के एक्चुअली 3 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये एक्चुअली वो साल होते हैं जब जहाँ पे आप अपने स्किल्स पे काम कर सकते हैं, आप अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं। 2019 में सर मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था, और मेरा भी सर एक, जैसे कहते हैं कि मैं बीजेएमसी में सिर्फ मेरा यही नहीं था कि मुझे लाइक फेम चाहिए। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो लोग बोलते हैं कि हमें फेम चाहिए, तो मुझे उस हिसाब से, वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे ये था कि मैं कॉलेज में एडमिशन लूँ, बीजेएमसी में एडमिशन लूँ, और मैं कुछ वहां से बनकर ही निकलूं, मतलब सीख कर प्रैक्टिकली चीजें सीखूं। और 2019 मेरा सबसे अच्छा बैच रहा था, सबसे अच्छा सर फर्स्ट ईयर ही था, क्योंकि हम लोग क्या था कि मैंने काफी ज्यादा चीजों में प्रैक्टिकली भी मैंने पार्टिसिपेट किया है। अगर मुझे पता चल जाता था कि अच्छा लॉ में कुछ इवेंट हो रहा है या बीजेएमसी में इवेंट हो रहा है, तो मैं हर चीज में पार्टिसिपेट करती थी। और मेरे कॉन्टैक्ट्स भी सर बहुत, लॉ में तो क्या, बीबीए में हर डिपार्टमेंट में मेरे कॉन्टैक्ट्स हो गए थे, टीचर्स भी मुझे जानती थी। और सर सबसे ज्यादा अपने कॉलेज की अच्छी बात ये है कि यहाँ पे टीचर्स आपको इतना मोटिवेट करती हैं, कोई टीचर आपको डीमोटिवेट नहीं करेगी। हम भी जब फर्स्ट ईयर में थे, तो चाहे वो अतुल सर हो, चाहे बाला मैम हो, हर टीचर ने सर बहुत मोटिवेट किया है, बहुत सपोर्ट किया है। और 2019 मेरे सबसे बेस्ट बैच था। लेकिन जैसे जैसे सर कोविड आया, जब हम सेकेंड ईयर में थे सर, कोविड आ गया था, तो बहुत प्रॉब्लम्स हम लोगों ने एक्चुअली फेस करी। हमें ऐसा भी लगता था कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, क्योंकि हम लोग, बीजेएमसी पूरा प्रैक्टिकली एक कोर्स है देखा जाए तो, लेकिन हम लोग क्या था, ऑनलाइन भी हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे, और प्रैक्टिकली चीजें हमें समझ में नहीं आ रही थी, जो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। बिकॉज इंडस्ट्री में जब हम जाते हैं, वहां पे आपसे कोई नहीं पूछता कि आपने थ्योरी में क्या पढ़ा है, वहां पे आपसे पूछा जाता है कि आपको कितना प्रैक्टिकली आता है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा लाइक कोविड में फर्क पड़ा है काफी ज्यादा। और कोविड में काफी चीजें ऐसी भी थी, जैसे कि लाइक
हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती थी, तो कुछ सब्जेक्ट्स में तो हमें बहुत इंटरेस्ट भी आता था क्योंकि टीचर्स हमें अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस, अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ हमें चीजें समझाती थी, तो हम इजीली उस चीज को ग्रैब कर पाते थे। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जिनको समझना बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, प्रैक्टिकली हम नहीं समझ पा रहे थे, वो हम लोग ऑनलाइन ही हमें पढ़ाया जा रहा था। तो हमें, मुझे तो पर्सनली सर ऐसा लगता है कि हमारे साथ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ना कोविड की वजह से नाइंसाफी हो गई है। इसमें कॉलेज का भी एक्चुअली कोई दोष नहीं है। हमें नहीं पता था कि कोविड आ जाएगा और इतनी सारी हमें एक्चुअली प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। लेकिन सर अगर हमारे टाइम पे कोविड आया है तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमने क्या खोया है, लेकिन हमने उस टाइम से क्या सीखा है, वो ज्यादा मैटर करता है। तो फिर नाइंसाफी के लिए तुम इतना क्यों परेशान हो? फिर तो जो था, इट इज पार्ट ऑफ लर्निंग, इट्स अ फेज ऑफ लाइफ. There are certain things in life which you cannot control. I mean, any calamity that happens, कोई भी ऐसी विपदा आती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कोई भी ऐसा होता है, तो there are certain things which we cannot anticipate. But then human beings are such that whenever something happens, we try to cope up with that kind of situation, and we always try to find out ways and means how can we meet that challenge. And this is something which DME Media School has also succeeded in doing, and you people must be realizing this, the way we try to handle this whole thing, and we tried our best to ensure that teaching does not suffer. सो प्राची, ये बताओ कि अच्छा, तुमने जितना ऑनलाइन के बीच में क्लासेस हुई, मतलब ऑनलाइन क्लासेस हुई इस पूरे 2 साल में, कितनी रेगुलर थी तुम अपने क्लासेस में? सर मैं सेकंड ईयर में मैं फुल मतलब रेगुलर थी। मैंने कॉलेज में सर थर्ड ईयर में थोड़ा कम कर दिया है आना, बिकॉज सर मेरी एक्चुअली मैं भी इंटर्नशिप में सर थोड़ा बिजी हो गई। लेकिन सेकंड ईयर में मेरी अटेंडेंस का भी सर कोई इशू नहीं था और मैं रेगुलर थी, मैं हर क्लास में आती थी और मैं टीचर से सर इंटरेक्शन भी मैं करती थी। और मुझे रेडियो सर बहुत पसंद था क्योंकि सुकृति मैम रेडियो पढ़ाती थी, तो बहुत इंटरेस्ट सर रेडियो में भी था। इसके अलावा सर सारी क्लासेस मैंने ली हैं, कभी किसी टीचर ने सर ये नहीं बोला कि मेरी अटेंडेंस का इशू है। वो तो सर थोड़ा फाइनल ईयर में आते हुए थोड़ा सा अटेंडेंस का जो है वो है, बाकी तो मैंने हमेशा नहीं, क्लास मैंने ली। तुमसे कोई सफाई नहीं, मैं तो पूछ रहा था कि तुमने कितनी सिंसियरली कोविड के समय में तुमने अच्छा नहीं कोविड का सर मैंने, किस तरह से और बेहतर इस्तेमाल करने की कोशिश की? सर मेरे लिए एक्चुअली कोविड का जो टाइम था वो बहुत पेनफुल था क्योंकि सर कोविड में मैंने अपनी लाइक फैमिली में 2 लोगों को मैंने खोया, तो बहुत ही ज्यादा एक्चुअली कोविड का टाइम पेनफुल था। इनफैक्ट हम सबके लिए जिन्होंने अपनी फैमिली में किसी न किसी को खोया है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मेरा कोविड का जो टाइम था बहुत ही अच्छा गया है, मैंने कोविड में ये किया है। लेकिन सर हाँ ये था कि मैं बस ये भगवान से यही दुआ करती थी कि जल्द से जल्द ये कोविड का टाइम निकले, हम अपने कॉलेज में जाएं और जो चीजें हम नहीं सीख पाए वो हम सीखें। अब सर जैसे अब थर्ड ईयर में सर मैं आ गई हूँ, तो थर्ड ईयर में क्या होता है सर, वर्कशॉप्स भी होती है कॉलेज में। एंकरिंग की वर्कशॉप हुई थी, जसलीन मैम आई थी, मैंने सर वो अटेंड करी थी। पूरे बीजेएमसी के बैच में सर फाइनल ईयर में मैं होंगी जो वहाँ पे वर्कशॉप में मौजूद थी। तो मैं लिटरली कोविड के टाइम पे तो सर आई वाज लाइक कि ये जल्दी से जो भी हो रहा है, बिकॉज सर मैं इतना सुनती थी कि लोग मर रहे हैं और बहुत बुरा हाल हो रहा है अपने देश का। तो मुझे सर जिसे कहते हैं ना, आई वाज लाइक कि बस सर कभी कभी तो मुझे ऐसा भी लगता था कि कहीं वो चीज ना मेरे साथ ना हो जाए। तो बहुत ज्यादा ही सर कोविड के टाइम पे तो बहुत बुरा हाल था। Okay, so moving on to Nandini now. So Nandini, you joined DME in 2020, and obviously that was a very critical phase, and your batch also came quite late. But then, as the university also tried its best to clear that backlog which was there, and things come on the track, we also tried to do that. And so, I mean, you have all that experience all through 2021. It was all online classes and all. In between, obviously, we were calling you people for various things, various activities, practicals and all. But then we would like to listen from you how your experience have been almost of the last one and a half year. For giving this opportunity to me. And तो स्टार्टिंग से ही बता दूं तो मैं फेस टू फेस में सेकंड बार आ रही हूँ और दिस इज लाइक अ गुड एंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो किसी को भी मिल सकती है। मैंने स्पेसिफिकली हमारे बैच ने स्टार्टिंग ही ऑनलाइन मोड से करी है, तो वो थोड़ा सा मिस होता था स्टार्टिंग में कि कैसे होता है,
कॉलेज का सबका बात कनेक्शन नहीं बैठ रहा था, बट धीरे धीरे स्टिल फैकल्टी बहुत अच्छी है हमारी बीजेएमसी की, हमसे कांटेक्ट रखते हैं, दे ट्राई टू सपोर्ट किसी भी सेंस में, मतलब अगर आपको कोई दिक्कत है दे विल कोऑर्डिनेट विद यू। सो वो चीज मुझे सबसे ज्यादा एक आपका कनेक्शन बनाने में बहुत हेल्प रही हमारी इस कोविड के दौरान। और साथ ही जो हम अभी की मैं बात करूं कि अब जब कॉलेज खुल चुके हैं तो कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है, तो सर इट इज अमेजिंग। इट्स लाइक आप डेली कॉलेज आओगे, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा, बट वही आपने एक चीज बोली थी पिछले बारी उसमें कि यू हैव टू पुश योरसेल्फ। आपने बोला था मुझे कि कैमरा ऑन करके तुम बोलती हो, तो मैं उस चीज को मैंने उठाया, मैंने कहा नहीं, अगर यू वोंट ट्राई तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो धीरे धीरे अब कॉलेज जाके अगर आपको कोई भी टीचर कुछ बोल रहा है ना, जस्ट गो और उस पे अपने आप को इम्प्लीमेंट कर दो कि लेट्स सी क्या होता है। तो सर कॉलेज खुलने के बाद हर दिन कुछ ना कुछ नया, कभी कभी बहुत खराब हो जाता है, कभी कभी बहुत सही भी हो जाता है, तो ऐसा चल रहा है कि मतलब कभी अच्छा एक्सपीरियंस होता है, कभी बुरा एक्सपीरियंस होता है। बट सर जब आप फील्ड में होते हो ना, जब आप वहाँ कॉलेज में होते हो, तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। पर्सनली मुझे तो बहुत सारी चीजें सीख रही हूँ मैं अभी भी, एंड आई एम ग्लैड कि मतलब मैं इस चीज को बुरा नहीं बोलूंगी कि वो 2 साल हमारे खराब हो गए, 1 साल जो भी गया है, क्योंकि वो भी जरूरी था। आई थिंक वो अगर जरूरी वो नहीं होता तो हम इसके लिए प्रिपेयर नहीं होते। तो आज जो हम पूरा वीक कॉलेज जाते हैं और जो हम सैटरडे संडेज में प्लान करते हैं, नाउ इट्स हॉलीडे, पर उसमें भी हमें असाइनमेंट करने होते हैं, तो हम भी लाइक हाँ हमें काम भी है अभी कुछ, तो दिस इज अ गुड, मतलब ये तो तुम्हारा एक्सपीरियंस जैसे तुमने कहा अच्छा हुआ, लेकिन तुमने बीच में ये भी बताया कुछ खराब कुछ बुरा। वो खराब और बुरा क्या है? सर डिक्शन। सर मैंने तो हमारे क्लास में कुछ सर ने वो दी थी, स्क्रिप्ट दी थी हिंदी की, तो सर ने बोला था पढ़ के सुनानी है। सो मैंने जितने भी एंकरिंग करी है, तो मुझे उस हिसाब से he was expecting from me कि मैं अच्छे तरह से करूंगी, and I was not able to do it। तो मैंने फिर एक चीज पकड़ी, मैंने कहा यहाँ पे मेरा लैक हो रहा है। तो वीकनेसेस ना सर सब सामने जो होते हैं ना, तब आपको ज्यादा पता चलती है, क्योंकि क्लास में जब आप एक बार एम्बैरेस हो जाते हो ना, तो आपको पता चल जाता है यहाँ पे आपको काम करने की जरूरत है। सो वो एक चीज मैं उसे लर्निंग की वे में लूंगी, और मैं उससे आगे अब मैंने सोचा कि अब आगे का प्लान थोड़ा अच्छे से क्रिएट करना है। पता चल रहा है कहाँ लैक है कहाँ नहीं है, वहां पे काम करने की प्लानिंग है अब। तो तुमने घर में जितने दिन रही, लगभग 1 साल, तो मतलब घर में ही रहना पड़ा पढ़ाई के दौरान, तो क्या क्या नई चीजें सीखी तुमने? सर अब मैंने बहुत सारी चीजें तो घर की ही सीखी, क्योंकि मम्मी का प्रेशर था ऊपर से, तो खाना बनाना सीख लिया था मैंने। तो मतलब माँ बाप के प्रेशर में काम करती हो? नहीं सर, वो बोलते हैं ना कि तुम्हें, मतलब मैं ऑलमोस्ट घर सब हैंडल कर लेती हूँ, बट खाना बनाना इज अ टास्क, मतलब मेरे लिए मेरे को डर लगता था कि मैं कैसे बनाऊंगी। तो वो धीरे धीरे सीखा, तो उन्होंने बोला कि नहीं तुझे करना है, तो उन्होंने दिमाग में डाला, तो फिर मैंने उसको फॉलो करने की कोशिश की धीरे धीरे। पहले तो बहुत खराब बनाया, बहुत ही ज्यादा खराब, बट फिर उसके बाद अब इतना हो गया कि हाँ आई मेक गुड फूड। सबसे अच्छी कौन सी चीज बनाती हो? सर मैंने मटर पनीर की सब्जी बनाई थी, और मैं खिलाऊंगी भी, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था। खिलाता तो कोई भी नहीं है, ये अरे सारे मैं नहीं आती सर, कोई नहीं। नहीं सारे 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 स्टूडेंट्स बताते तो है कि क्या क्या बनाया, ना अपने फ्रेंड्स को खिलाते हैं ना टीचर्स को खिलाते हैं। नहीं सर, मंडे। Okay, so moving on to you, Sajal. Sajal, your batch is comparatively lucky as compared to the 2 senior batches, because you started in the physical mode, and again with a very short gap, again you are in the physical mode. But then when this COVID happened, last 2 years, you had been in 11th and 12th standard, so obviously there you had to suffer. So if you look at your COVID experience in terms of your the adverse things which would have happened to teaching or on the personal front and all, how will you narrate all your experience of this period? First of all, sir, it's pleasure to be here. Thanks a lot for this. And मैं जब 12th में थी, and 12th मैंने 2020 में पास आउट किया था, so the corona period was जब मैंने एक ड्रॉप लिया,
and that was very miserable because things were going wrong from long back, from 2019 only. Then the corona period came, and I must say, to be very precise, it was a journey from self doubt to self discovery. And I just made it worth. I did everything, and I can say I lived 2 or 3 years in just 1 year. I explored my culture exchange program on international level. That was online only, but I got to know about people connecting from different countries, and that was the very good experience. I was part of 5, 6 internships. I completed that in 2 months, 3 months, and that was a very good experience. And then I learned about NLP. This is a mind programming language. And then I have done one level of Reiki. That is a healing thing, and that helps a lot. I got to know about how powerful it is. तो जो पिछला 2 साल बीता उसमें तुमने नया क्या सीखा? So the Reiki thing and NLP and the professional exposure I got, that was the best thing. So moving on again to you, Prachi. Since you have been active in so many things during this period, I mean, since the time you joined DME, what is that one thing or two things which interest you most as far as your interest is concerned, your inclination is concerned, your hobbies are concerned? Which areas you will point out are the most interesting, and what all you do as far as your creative instinct is concerned? सर मैंने जैसे कि बताया था कि मैं बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन मैं जनरली सर एंकरिंग से रिगार्डिंग, जैसे मैंने आईकैन 3 में भी एंकरिंग करी थी, मैंने वृत्तिका में भी एंकरिंग करी थी, मैं हिंदी डिबेट की भी एंकर रह चुकी हूँ, इसके अलावा मोनो एक्टिंग कंपटीशन में भी मैंने एंकरिंग करी थी। तो सर जितने भी मैंने इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है सर, होता क्या है कि हमें बहुत लोगों से मिलने का एक तो मौका मिलता है, और हर इंसान के सर अलग अलग व्यू पॉइंट्स होते हैं, हर इंसान के अलग अलग देखने का नजरिया होता है। जब हम लोगों से मिलते हैं तब हमें उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस जानने को भी मिलते हैं, और प्लस सर क्या होता है कि जो हमें सुन रहा है पर्सन, वो हमें बताता है कि हमने कैसा, वो हमें फीडबैक देता है, काइंड ऑफ फीडबैक। तो सर मेरे को हमेशा से ये रहता था कि मैं चीजों में पार्टिसिपेट करूं जितना हो सकता है, और लाइक ये हो सकता है कि मुझे कॉलेज खत्म होने तक अपना सीवी इतना अच्छे से डेवलप कर लेना है कि जो भी बंदा मेरा सीवी देख रहा है वो बोले कि दिस इज द पर्सन आई एम लुकिंग फॉर। तो मैंने हर चीज में पार्टिसिपेट किया है। मैंने MUN मॉडल यूनाइटेड नेशन जो होता है MUN, मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया है सर। मैं उसी की मेंबर थी, ऑर्गेनाइजेशन कमिटी की मेंबर थी। तो तुम अपना सीवी को तो स्ट्रॉन्ग, पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग करना चाहती हो, लेकिन अब जैसे तुम एंकरिंग की बात कर रही हो, अब तुम किसी को सीवी दिखाओगी, वो कागज में पढ़ के तो एंकरिंग तुम्हारी कैसी है ये समझेगा नहीं, वो ये जानना चाहेगा कि तुम एंकरिंग कैसे करती हो। तो तुम एंकरिंग में वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका सबसे ज्यादा ध्यान रखती हो? सर सबसे पहले तो मैं अगर मैं बात करूँ ध्यान रखने की, तो जैसे अगर किसी ने मेरा सीवी देखा या कुछ भी देखा सर, मैंने जिस भी इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है उनकी सर मैं लिंक्स जो है अपनी सीवी में मेंशन कर देती हूँ, ताकि जो पर्सन है वो उसको अप्रोच कर सके और वो देख सके। इसके अलावा सर मेरी ये कोशिश रहती है कि मैंने जिस भी इवेंट में, हर इवेंट से मैं कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ, ताकि मैं उन इवेंट से जो है और बेहतर से बेहतर कर सकूं। क्योंकि सर मीडिया इंडस्ट्री में आपकी अगर आपसे जरा सी भी गलती हो जाएगी तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। अभी जैसे सर मैं C10 न्यूज में हूँ, तो मैं इनपुट डिपार्टमेंट में हूँ, वहां पे सर हम लिटरली एंकर्स को देखते हैं, अभी छोटे चैनल में है लेकिन सर इतना एटीट्यूड है उन लोगों में, बहुत ज्यादा सीधे में बात ही नहीं करती हैं वो। तो मेरे को ये रहता है कि जितना हो सकता है मैं अपने आप को परफेक्ट बनाऊं, ताकि जब मैं किसी बड़े चैनल में जाऊं तो एटलीस्ट ये रहे कि मेरे को काम भी आता है। और ना लाइक सर सबसे ज्यादा एंकरिंग में ही होता है, आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपको नॉलेज है तो कोई आपकी बेइज्जती नहीं कर मार सकता, फैक्ट्स होने बहुत जरूरी है। तो तुमने मतलब एटीट्यूड सीख लिया है, मतलब वो भी डेवलप करना जरूरी होगा आगे एंकर बनने के लिए? सर हाँ सर बिल्कुल सर, वो आगे जरूरी होगा, अभी तो नहीं। क्योंकि सर एक्चुअली क्या होता है, ज्यादा सीधा रहना भी सही नहीं है। क्योंकि चाणक्य की एक बात है कि जंगल में जो सबसे पहले सीधे पेड़, टेढ़े पेड़ सीधे होते हैं वो पहले कटते हैं, टेढ़ों को तो बाद में काटा जाता है। तो आप इतना भी सीधा मत रहो, लोगों को आपने जितना हो सकता है लोगों को ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्वेशन से सर आपको बहुत हेल्प मिलती है।
और ये चीज नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर ने भी अपने एक इंटरव्यू में बताई थी, क्योंकि सर वो एक्टिंग से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से सर उन्होंने एक्टिंग सीखी है, तो लोगों के बीच में रह के उन्होंने ये सब चीजें सीखी हैं। तो मैंने उनकी वीडियो देखी, तो सर मैं वहां से भी इंस्पायर हुई थी कि मैं इस चीज को अपने एंकरिंग में भी अप्लाई कर सकती हूँ, लोगों के बीच में रहूंगी, लोगों से सीखूंगी, और जहाँ पे लगेगा कि हाँ अब अप्लाई करने का टाइम आ गया है, तो अप्लाई करेंगे वहां पे। तो सर यही सब है। ठीक है। सो मूविंग ऑन टू यू नंदिनी, तुम दोनों ही लोग एंकरिंग वाले लाइन में हो, तो अब you have also been active in so many programs in the college and otherwise also, since you are interested in anchoring, what all you will tell us about your not only about your interest in anchoring, but overall about your learning and what exactly you are aspiring to do as an anchor. तो बेसिकली स्टार्टिंग एंकरिंग से पता नहीं था कि हो जाएगी, बट हाँ वो जब आप वहाँ पे आते हो, फील्ड में आते हो, तो आपको लगता है कि दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी अट्रैक्टिव, मतलब आप उसको देख के आपको पसंद आ जाएगी, पर उसके पीछे की जो मेहनत है कि अगर आपको कोई इंसान पसंद भी आ रहा है, वो एंकर है, तो उसमें उसने बहुत मेहनत करी है। तो पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं आज भी शायद बोल सकती हूँ, मतलब मुझे थोड़ा अब डाउट होता है, था मतलब पहले डाउट होता था, अब नहीं होता, थोड़ा कम हो गया उससे, कि कैमरा कॉन्शियस हो जाना। पहली चीज, डिक्शन बहुत प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप एंकरिंग कर रहे हो, आपका डिक्शन ढंग से नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपकी वर्ड की जो भी सेंटेंस है, वो प्रॉपरली एक मतलब फुल स्टॉप, कॉमा, हर चीज का एक प्रॉपर वे होता है बात को बताने का। तो वो चीजें, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। और नॉलेज तो इम्पोर्टेंट है ही, सबको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको कोई भी आके बोल देगा कि इसके बारे में बोलना है, इफ यू डोंट नो, तो दैट वुड बी अ प्रॉब्लम। तो ये चीज मुझे एक लगती है कि एंकरिंग में धीरे धीरे, और मैं भी सीख रही हूँ सर, अभी मैं ये नहीं कहती कि मैं अच्छे उसमें हूँ, बट हाँ मैं हर दिन अपने आप को सिर्फ इसलिए पुश करना चाहती हूँ क्योंकि आई थिंक कि एक पोटेंशियल है। और जैसे उन्होंने, प्राची ने बोला कि एंकरिंग होने के मतलब एक एंकर होने के बाद आप में एटीट्यूड आ जाता है। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अगर आप ग्राउंडेड रहोगे तो आप ज्यादा लोगों को टच कर पाओगे। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि मैं अगर एक अच्छी एंकर बन गई या मैं बन रही हूँ, मैं उस बात पे हूँ, तो मैं कभी भी वो एटीट्यूड, क्योंकि सर एटीट्यूड एक ऐसी चीज होती है, वो सामने वाले को ना आपको जज करने का मौका दे देती है। तो मैं वो नहीं लाना चाहती, और मैं यही चाहती हूँ कि people should be able to come and talk to me। मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि तो वो है तो इससे बात थोड़ा दूर करके करना है, इजी गोइंग होना चाहिए। तो नॉलेज एनहेंसमेंट के लिए क्या करते हो? क्योंकि प्राची ने भी ये बात कही, तुमने भी कि नॉलेज होनी चाहिए एंकर के लिए, सिर्फ बोलना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। तो नॉलेज एनहेंसमेंट के लिए तुम क्या करती हो? सर मतलब जैसे कि न्यूज़पेपर, एक तो जो हमें फर्स्ट डे से सिखाया जाता है न्यूज़पेपर पढ़ो। सर मैं सच बता रही हूँ, मेरे को आदत नहीं थी पढ़ने की, बस एक पैराग्राफ पढ़ लिया ना, दैट वुड बी अचीवमेंट फॉर मी। क्योंकि मेरी स्टार्टिंग से ही मैं थोड़ा सा उसमें होती थी कि मेरे को आलस आ रहा है, कैसे पढ़नी है। बट सर मैंने एक चीज नोटिस करी है कि आप पढ़ जो रहे हो ना, वो आपको तब समझ आएगा जब आप वो बोल के पढ़ोगे, आपके कान में जाएगी आवाज। प्लस इससे एक और चीज अच्छी होती है, आपकी डिक्शन की क्लैरिटी आती है कि मतलब अगर आप बोल के पढ़ रहे हो तो आपको शब्द भी समझ आ रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हो, और आपको मतलब भी समझ आ रहा है। तो ये एक चीज जो मैंने मतलब फिर मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया। कुछ मेरे को इंस्पिरेशनल बुक ज्यादा पसंद है, तो मैं उसका एक पैराग्राफ पढ़ना प्रेफर करती हूँ, तो मुझे उससे वर्ड भी समझ आता है और उसका मतलब भी समझ आता है। अच्छा, किस तरह कौन सी इंस्पिरेशनल बुक पढ़ती हो? सर मैंने एक शिव खेड़ा की पढ़ी थी, यू कैन विन। तो मैं वही मेरी कंटिन्यू चलती, मतलब वो थोड़ा ऑन ऑफ चलता रहता है, बट मैं उसे पढ़ना बहुत प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो उससे मैं कुछ कनेक्ट कर पाती हूँ अपने आप को, तो इसीलिए। तो हम तो इंस्पिरेशन के लिए इतना लंबा प्रोग्राम कर रहे हैं, वाइब्रेंट इंडिया सीरीज, उसमें कुछ लोगों को सुन के इंस्पिरेशन नहीं मिला? मैं आपको बता नहीं सकती सेशंस जो होते हैं, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था, बट ऑफलाइन से जैसे ऑनलाइन से जैसे ऑफलाइन में ट्रांसफर हुआ है, अभी तक का कोई सेशन मैंने मिस नहीं करा ही नहीं है। मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वहां रहूं, क्योंकि सर वहां बैठ के जो आपको एक क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं ना, यू कैन आस्क देम डायरेक्टली। तो ये चीज ना मुझे बहुत
इनहांस करती है, मेंटली भी आप प्रेजेंस होता है आपका। और इवन जो हमारी ऑनलाइन हुई थी मोड में, उसमें थोड़ा सा मेरा घपला चला था वो उसके लिए तो मैं एग्री करती हूँ, बट इसका मतलब तुम्हारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें थोड़ा सा जो आलसी हो, ये लगता है मुझे। सर वो थोड़ा सा उस आलसी नहीं कह सकते, बीच में से शुरू करते हैं ना, जब कोई इवेंट को बीच में से शुरू करते हैं तो आधा वो समझ आता है, आधा वो समझ नहीं आता। वरना मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उस टाइम पे प्रेजेंट हूँ और उस चीज को जिस भी तरह से पकड़ने की कोशिश करूँ। ठीक है। So moving on to you, Sajal. If I ask you, Sajal, about your interests, your inclinations, your passion, and your creative instinct, what will you tell us? सर, जैसे कि प्राची और नंदिनी जी ने भी बोला कि दे आर इनटू एंकरिंग, तो मुझे भी बहुत ज्यादा एक्सपोजर अभी चाहिए। एंड व्हेन आई एंटर्ड टू दिस कॉलेज, एक्चुअली मेरा फैमिली बैकग्राउंड एक न्यूज़पेपर का है, बट व्हेन आई लॉस्ट माय फादर, me and my mother tried to make it that level, but we were unable to do that because of I was also not aware of how things are going on in this field. But when I entered to this college, it just made me feel ki okay, this is the platform, now I can learn from it. I just want to fill in knowledge, lots of knowledge, and then I just want to make it to a height. तुम्हारा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किन चीजों में है, किन क्रिएटिव चीजों में तुम्हारा ज्यादा इंटरेस्ट है? तो फर्स्टली तो मुझे वीडियो क्रिएशन का भी और भी कुछ चीजें फ्रीलांस में करी हैं, सो आई एम मच इनटू प्रेजेंटेशन एंड न्यूज़ एंकरिंग, एंड बस ये करना है कि ये अच्छे से मैनेज हो जाए, इसके लिए तो तुम्हारा लिखने पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो तुम न्यूज़लेटर की टीम में हो? यस सर, आई हैव जॉइंड। अच्छा, क्या करती हो वहाँ पे न्यूज़लेटर में? सर अभी तो बस एक सैंपल लिखा है एंड देन अभी ट्रेनिंग्स के अंदर हूँ। पढ़ती क्या हो? What kind of books you read? Self-help books. I have read The Secret, Awaken the Giant Within You, Alchemist. और इसके अलावा म्यूजिक, डांस, किन किन चीजों में इंटरेस्ट है? I'm very much into pageantry. Pageant is my passion. If I talk about myself, passion is something, if it is giving you a pain, then you can suffer. It gives you, if that pain is happiness for you. So pageantry is some kind of that. I am not eligible for the pageantry, but still I follow the news. I follow everything about it. What exactly is this? I am not aware of this. Can you elaborate on this? Yeah, the beauty contest, Miss Beauty India. contest you're talking about it. So what kind of interest you have in beauty contest? To be a participant, because I have seen, I have participated in one personality contest in the Corona period, and I was first runner up of that. So that gave me a confidence that it challenges you and brings you back to whatever you are. And I was talking about the self-discovery thing that made me realize that how I am and how I should be. And the helpful thing was I got an opportunity to learn from the Manushi Chiller's pageant coach, Rita Gangwani. So that was a very great experience for me. Okay, so what all you do for your personality enhancement, or to make your personality more impressive? Anything, since you are referring to so many things, so what all you have decided for yourself to make your personality impressive? I am attending workshops where I fully participate, and they judge me, they give me feedback accordingly, and then I work on it. Okay, so moving on to Prachi, to you again.
Prachi, since you have told us something about DME Media School and the campus, but this time I'm asking you a very pointed question. What is that one thing which interests you most or which impresses you most on the campus of DME? And this I'm referring to your experience and relationship with teachers, with your peers, with your friends, and whatever else you do on the campus. सर जो चीज मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है सर वो है कि यहाँ पे डीएमई में मैंने जब एडमिशन लिया था तो जिस तरीके से यहाँ पे टीचर्स ने मोटिवेट तो किया ही किया, लेकिन मैंने सबसे पहले जब लाइफ में स्टूडियो देखा था तो सर मेरा जो एक रिएक्शन होता है ना कि सर मैं कहाँ मतलब मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना वहां तक मतलब स्टूडियो देखूंगी लाइफ में। लेकिन सर मैंने जब देखा, लाइट्स देखी, मैंने स्टूडियो देखा, तब मुझे लगा कि हाँ और मेहनत करनी है और बहुत कुछ लाइफ में करना है, अचीव करना है। सिर्फ कॉलेज में एडमिशन लेने से ही आप कुछ कुछ एक उसका समाधान नहीं निकलता है। आपको टीचर्स के बीच में रह के ट्रेनिंग लेके तब लाइफ में कुछ आपको करना होता है। तो सर टीचर्स तो डीएमई में मेरी सबसे ज्यादा ही सारी क्लोज हैं। फिर चाहे वो मनमीत मैम हो सर, वो चाहे आप हो, क्योंकि सर आपकी क्लासेस में भी जब आप फर्स्ट ईयर में जब आप हम लोग से इंटरेक्ट करते थे सर, आप मुद्दे पे बात करते थे और ना आपकी क्लास में काफी हमें इंटरेस्ट भी आता था। तो वो चीज सर हम 2020 में भी हमने बहुत मिस करी है वो, कि कॉलेज में सर जो भी आपने हमें नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करी है वो अगर हम कॉलेज में भी 2020 के दौरान करते तो काफी सही रहता। लेकिन हम लोग वो हमने ऑनलाइन करा। बहुत सी चीजें हैं सर। इसके अलावा सर मुझे मूड कोर्ट भी बहुत पसंद है, क्योंकि मूड कोर्ट में भी सर मैंने एंकरिंग करी थी और मैंने जब लॉ वालों से पूछा था कि अच्छा ठीक है आप मुझे मूड कोर्ट के एंकरिंग का एक फॉर्मेट दे दो, मुझे लगता था कोई फॉर्मेट होता होगा एंकरिंग का मूड कोर्ट में। बट सारे लॉ वाले सर इतने शॉक्ड हो गए थे कि मूड कोर्ट में तो कोई एंकरिंग नहीं होती है। किसने कहा है कि मूड कोर्ट में एंकरिंग होती है? जो भी आपका फॉर्मेट है आप उस वे में कर दो एंकरिंग। तो मुझे कॉलेज में सर दो चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। एक तो सर मुझे मूड कोर्ट बहुत अच्छा लगता है और सर अपना स्टूडियो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं स्टूडियो में सर बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं एक पॉजिटिव वहाँ पे एक एनवायरनमेंट मैं महसूस करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये दो चीजें हैं जहाँ पे मुझे बहुत अच्छा फील होता है। And what about your friends in college? सर कॉलेज में मेरे कॉलेज में एक्चुअली फ्रेंड्स बहुत कम है, लेकिन जितने भी हैं दे आर वेरी सपोर्टिव। लेकिन सर ये होता है कि अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो एकदम टोक देंगे कि तुम ये चीज गलत कर रही हो, ये चीज तुम मत करो। और कुछ मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिनसे सर मेरी अब जमती नहीं है। पहले जमती थी फर्स्ट ईयर में, लेकिन सर अब नहीं जमती, क्योंकि सर थोड़ा वैसी लोगों के अंदर भावना उत्पन्न हो जाती है कि वो मेरे से आगे नहीं जाना चाहिए, या वैसा थोड़ा हो जाता है कि ये तुम्हारे बस की नहीं है, तुम ये नहीं कर सकती। तो ऐसे भी बहुत से सर दोस्त थे तो कॉलेज में। इसमें तो कोई बुराई है नहीं, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट तो होनी चाहिए। सर कंपटीशन तो हर जगह है, आप इंटरव्यू देने जाएंगे वहां पे भी कंपटीशन है सर। न्यूज चैनल में तो बहुत ज्यादा ही कंपटीशन है सर, सब जगह है। ऐसी सब जगह लाइफ, है। ऐसा लाइफ में देयर इज नो वॉक ऑफ लाइफ जहाँ पे आपको प्रतियोगिता का सामना नहीं करना पड़ेगा, हर जगह ही करना पड़ेगा। हाँ जी सर। Okay, so moving on to you, Nandini. If I ask the same question to you, your experience and whatever you want to tell us regarding the campus, DME Media School, the teachers, your classmates, your friends, what would you like to tell us? So basically क्लासरूम से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम क्लास में क्योंकि फर्स्ट आते ही हम क्लासरूम में पहले एंटर करते हैं। टीचर आर सो सपोर्टिव। अगर आप लेट भी हो गए तो दे वोंट स्कोल्ड यू, बट दे विल लास्ट में बता देंगे आपको कि तुम जल्दी क्यों नहीं आए। बट हाँ, टीचर्स आर वेरी सपोर्टिव। उनको सब मतलब उनसे अगर आप कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करोगे दे आर इजी गोइंग। और क्लासमेट्स बहुत सपोर्टिव हैं, क्योंकि मतलब अगर कोई बच्चा कोई बोलना चाह रहा है या कुछ बात करना चाह रहा है और वो नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस, तो बाकी सब उसको बोलते हैं कि नहीं तू बोल, अगर तू गलत भी बोलेगा तो कम से कम यहीं पे होगा जो होगा। तो ये एक यूनिटी मुझे दिखी अभी कॉलेज में आके, कि एक वो यूनिटी है क्लास में मेरी स्पेसिफिकली। तो वो एक अच्छी चीज है। ऊपर से स्टूडियो तो मतलब इट्स
एक मंदिर होता है ना सर, कि हम जाते हैं तो वी फील लाइक ओके नाउ दिस इज समथिंग वेयर वी विल लाइक ट्रस्ट है हमें एक, वहां पे एक वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, वो इतना है कि आप वहां जाओगे तो यू विल लर्न समथिंग न्यू, चाहे आप सेंटर स्टेज में हो, चाहे आप अंदर योगेश सर और सुमंत्रा सर के साथ हो, तो आप वहां से कुछ ना कुछ सीखो के ही आने वाले हो। तो ये चीज एक है वो, तो कॉलेज का एनवायरनमेंट इतना अच्छा है कि आपको कभी अकेला फील नहीं होगा वहां पे। तो ये चीज मुझे पर्सनली लगती है। तो तुमने तो सिफी में भी काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि तुमने स्टूडियो की बात की, सो दैट रिमाइंडेड मी बिकॉज आई सॉ यू, जो इनिशियली हमने लॉन्च किया था इवेंट को, सो यू एंकर्ड दैट होल प्रोग्राम। सो व्हाट विल यू टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस एंड व्हाटएवर यू डिड एज पार्ट ऑफ द सिफी टीम? So it was a great experience. I would really want to talk about it because जब हम, वो पहला टाइम था जब मैंने कैमरा फेस किया था ऑफलाइन, एंड ये तुमने पहली बार में ही बहुत अच्छा किया सर। थैंक यू सर, बट वो चीज मेरे को इतना मतलब मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी सर, मैंने उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करी थी। अगर वो अच्छा हुआ था तो वो सिर्फ इस वजह से हुआ था क्योंकि रात भर प्रैक्टिस हुई थी उसकी। और ये था कि जब आप कैमरा एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ अ सीफी टीम, इट्स अ टीम, मतलब वहां पे आपको ये नहीं दिखेगा कि कोई अच्छा कर रहा है, कोई, सब एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, सब एक दूसरे के लिए, मतलब अगर उसे नहीं हो रहा तो तुम हेल्प कर रहे हो, तो दिस बॉन्ड वी क्रिएट इन बीजेएमसी, वी हैव दिस काइंड ऑफ टीम वर्क। तो मुझे ये चीज सबसे अच्छी लगी, मैंने ये सीखा है यहाँ के कि एक टीम को बांधने के लिए अगर कोई थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो हाउ टू कंट्रोल इट, कि चल ठीक है कोई बात नहीं, अभी तेरी सुन लेते हैं फिर बाद में। तो दिस बिहेवियर जो हमने यहाँ पे आके सीखा, तो ये चीज मुझे अच्छी लगी कि तुम्हें हर तरह के इंसान के साथ कोऑर्डिनेट करना आना चाहिए। तो सीफी टीम में भी सेम ऐसा ही रहा, और वो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया था। इट वाज वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस एंड मेरा पहला था। मैं चाहती हूँ कि मैं इसे और करूँ, और बहुत कुछ सीखना है अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग है। अपने फ्रेंड्स के बारे में कुछ बताना चाहोगे? सर मेरे फ्रेंड, मेरे क्लास में, मतलब मेरे सब क्लासमेट से मैं सबसे बात करती हूँ, मैं किसी से ऐसे नहीं छोड़ती कि किसी को ऐसा लगे कि बात नहीं करती, क्योंकि मेरे को नहीं पसंद कि अगर कोई अकेले भी बैठा ना, मैं जाके वहां पे बात कर सकती हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट कि किसी को ना अकेला लगे वहां पे क्लास में भी, ऐसा मैं नहीं चाहती पर्सनली। तो मेरे क्लास में सबसे मेरी बहुत अच्छी बातचीत है। इवन हमारे मेंटर्स सुकृति मैम ने हमारे क्लास में एक एक्टिविटी भी करवाई थी ताकि बच्चे थोड़ा इंटरेक्ट हो, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिनके सच में जिनको नाम ही नहीं पता है। तो जब तक बच्चे रहेंगे तो कैसे होगा? यू नीड टू ग्रो अप आल्सो ना। या वो वही साथ ही थोड़ा एक दूसरे को जानना और उसके बाद फिर काम, तो ये दोनों मिक्स चलता है। कभी कभी सर बच्चे बोलते हैं कि क्लास नहीं लेते, तो फिर लगता है कि क्लास नहीं ली तो सीखेंगे क्या। तो वो चीज ना, मतलब तुमने कभी कोई क्लास बंक नहीं की, इसका मतलब? अभी तक हाँ, नहीं की, नहीं करी, अभी तक तो नहीं करी सर। आगे करने की योजना है? नहीं सर कोई इमरजेंसी होगी तो छोड़नी पड़ जाएगी, तो वो तो एक अलग बात होगी। हाँ, इमरजेंसी तो अलग, बंक करना ये होता है कि जब आपका मूड नहीं है पढ़ने का और सारे के सारे लोग गायब हो जाओ, वो बंक करना। कॉलेज आना इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइक कॉलेज, अब अगर आप कॉलेज आ रहे हो ना, मैं 1 घंटा दूर रहती हूँ सर, मैं राजनगर एक्सटेंशन रहती हूँ, तो मैं जब कॉलेज आती हूँ ना, तो मेरे को पता होता है कि मुझे क्लासेस लेनी है, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर मैं इतनी दूर से आऊं और मैं फिर आके क्लासेस बंक करूं तो फिर फायदा क्या है मेरे आने का। तो वो चीज मुझे नहीं समझती। जब घर से निकलती हो या कॉलेज की जाने की इच्छा होती है, तो वो उस इच्छा में सबसे डोमिनेंट फैक्टर क्या होता है कॉलेज जाने के लिए? क्लास करना कि थोड़ा फन करना, लोगों से मिलना या बात करना? सर हर दिन एक चीज दिमाग में होती है, आज तो कुछ सीखेंगे बस। मैं कल का एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहूंगी। तो आप मुझे एंकरिंग के से जानते हो, तो मुझे अच्छा लगा कि आपको याद है। तो कल क्या हुआ, कल योगेश सर आए, कल इवेंट था, उस फ्रेशर्स थी लॉ वालों की। तो वहां पे लास्ट मोमेंट पे एक कैमरा पर्सन चाहिए था हमें। तो योगेश सर आए हुए थे और वन ऑफ द पर्सन उससे बात कर रहे थे, तो मैं भी वहीं थी। तो सर ने बोला कि हमें फोटो खींचने के लिए एक बंदा चाहिए।
मैंने कहा सर मैं करूंगी, मुझे नहीं आता कुछ भी, पर सर मेरा को पसंद है कि मैं मेरे को भी एक आए, मतलब एक फ्रेम बनाना है, एक अच्छी पिक्चर्स खींचनी है मुझे। मैंने सर मैं करूंगी। सर ने कहा पक्का कर लोगी? मैंने हाँ सर कर लूंगी। सर कर ने लिया कहा तुमने? चलो आज सर। यस, मैं गई थी, उसमें से 15 फोटो सिलेक्ट भी हो गई हैं जो कि अब जा रही हैं आगे फर्दर, मतलब जो मैंने खराब खींची वो तो हटा दी गई, और कुछ 15 अच्छी सिलेक्टिव फोटोज जो सर ने लेकिन सिलेक्ट। तुमने कितना रिस्की काम किया। इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, तुम उनके सारे फोटो खराब करके आ जाती फिर क्या होता है? सर नहीं, ये तो था मुझे कि मैं अच्छी फोटोज खींचती हूँ क्योंकि मैं फोन से खींचती हूँ सर। पर वो कहते हैं ना कि वही सर, कल अगर योगेश सर नहीं बोलते वो चीज कि नहीं नंदिनी तुम कर लो, और सर ये भी बोल सकते थे कि नहीं नंदिनी तुम मत करो क्योंकि तुम अभी लर्नर हो, तुम मत ही करो, बट उन्होंने थोड़ा करा और उसकी वजह से मैंने वो फोटोज खींची और मैं अच्छी खींच पाई। अब सर ने मुझे बोला कि तुम, अब हमारे पास एक और बंदा हो गया, अब हम काम करेंगे थोड़ा, तो मुझे भी खुशी हुई कि आपको कैमरे के आगे आना भी अच्छा लगता है, उसके लिए भी मेहनत करो, और कैमरे के पीछे रह के भी मेहनत करनी चाहिए क्योंकि वो बहुत जरूरी है। तुमने अपने जूनियर्स के लिए काफी सारी चीजें सिखाने वाली बता दी। अगर मैं मतलब उसको फाइनली सम अप करूं, 2-3 तुमने बहुत ही अच्छी बातें कही। एक तो तुमने जो टीम वर्क के बारे में बोला, विच इज रियली रियली वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, और दूसरा जो लर्निंग के लिए जिस तरह का अप्रोच होना चाहिए कि यू आर ऑलवेज रेडी टू लर्न समथिंग न्यू। ये इतनी इंपॉर्टेंट बातें तुमने एक फ्लो में कही, but these are two very very significant things which you have spoken, which are relevant for each and everybody, not only to the students but also to the teachers as well. Okay, so moving on to Sajal again. Sajal, what will you tell us about your campus life? Though it's a very short period, but then the way you have been active and the way I see you participating in various activities, because whenever somebody is active, it will never get unnoticed. So I notice you indulging into so many things. So given all that experience that you have got till date, what will you say about your experience about the campus, including the teachers and the friends? Thank you sir for noticing it, and acknowledging it. So first day जब हम गए थे, teacher said one thing, this is your another house, and उस time we took it very lightly, but day by day वो पता चला कि वो बात 100% सच है, क्योंकि यहाँ आने का ऐसा कुछ नहीं होता कि मन नहीं है आज नहीं जाओ. You have every day, you are just coming up with new opportunity. So this is the best thing. And teachers are very supporting. ये तो सब बोल ही रहे हैं, and नहीं, सबके बोलने पे मत जाओ, अगर तुम्हारी कोई अलग ओपिनियन है उसको भी तुम बोल सकते हो। सर नहीं, कोई डाउट की बात ही नहीं है, दे आर वेरी सपोर्टिंग, और कोई किसी के एक्टिव रहने का यही चीज होती है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं तभी कोई कर पा रहा है, इट वोंट बी पॉसिबल। तो टीचर्स से तुम्हें किस तरह का सपोर्ट मिलता है? So they are not just like कि ठीक है इसको अब छोड़ देते हैं, अब इसने बहुत कर लिया तो इसको छोड़ देंगे, अब नेक्स्ट को अपॉर्चुनिटी देंगे। They are just एडजस्ट करने का कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई साधन ढूंढ ही लेते हैं। This is the best thing. And जब मैं स्टूडियो yes continue. जब मैं स्टूडियो में फर्स्ट डे गई थी, so as everybody was saying, मैं फिर से एग्री करूंगी कि वहाँ की वाइब्स इतनी वार्म है, इतना अच्छा लगता है वहाँ जाकर, एंड व्हेन यू आर जस्ट सीइंग एवरीबॉडी, अंजना ओम कश्यप एंड श्वेता सिंह एंड मेनी मोर रिपोर्टर्स कि how they are reporting, and then when it just coming to the college and experiencing that vibe, so that was really warm, and मैंने वहाँ पर सोचा सेंटर स्टेज पर जाके to take the feel, but I stopped myself, and then मैंने बोला कि नहीं अभी नहीं जाऊंगी, मैं जब परफॉर्म करना होगा तभी जाऊंगी। नहीं, परफॉर्म का मतलब ये नहीं है कि I mean whatever impression you have about the performance wherein only you are speaking and everybody is listening, even if you are part of the team and whatever you are doing, that's part of performance. Even if you are part of 30-40 people, like in any audience based program that we normally do in a studio,
the initial meetings and the program that we had with your batch in the studio. So that time also anything, because I remember you raised certain points in the sessions that I took in the studio. So even then, when you were speaking something, you were raising your point. So that's in a way is part of your participation, isn't it? Yes, sir, it is. But वहाँ का feel ही अलग है ना, center stage का. नहीं, स्टूडियो के जो फील की बात है, जैसे प्राची ने भी कहा, नंदिनी ने भी कहा, तुम भी कह रही हो, तो वो जो फील है ना, तो स्टूडियो इज नॉट अबाउट ब्रिक्स एंड वॉल्स एंड द लाइट्स एंड द कैमरा, बट देन स्टूडियो बिकम्स लाइवली व्हेन यू पीपल आर देयर. So those vibes are there when you people are there with all your heart, with all your charm, with all your interest, and then you are doing something and you are doing it with the core of your heart, and you are participating and you feel that it's a good place where you can work. That is how those vibes will be there as you people are talking about. Yeah, you want to add something to this? No, it's enough. Indeed, I can just. It was lovely experience. ये पूरा first semester was beautiful. तो अभी तो 5 बाकी हैं, तो अभी तो फिर वो ब्यूटी ऐड होती जाएगी उसमें. थोड़ा सा तुम्हारे शब्दों में थोड़ा, जैसे कहते हैं ना, ऑस्टेरिटी करती हो तुम थोड़ा, तो एंकरिंग में तो मुश्किल पड़ेगी तुम्हें आगे. शब्दों में मितव्ययिता करती हो, ये समझ गई? बिहारी की तरह ना, तुम थोड़ा गागर में सागर भर देती हो, कम शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करती हो, तो थोड़ा सा उसको और एक्सपेंड करने की जरूरत है. क्या हुआ? Did you get what I'm trying to tell you? Yeah, I'll work on it. Yeah, okay. So moving on to you, Prachi, again. Now, since almost your VJMC is over, and next month you will be having your exam. So, and you have already started working, and you have spoken a lot about your interest in anchoring and all. But then once you are there in the industry and as you will grow, what are your plans about your career in the long run? And what do you feel that the work that you have learned here in DME and the work that you have done right now and the planning that you have for future in your career, what all you can tell us in this program? ओके सर, मेरी फ्यूचर में एक्चुअली प्लानिंग ये है कि मैंने सोचा है मैं मास्टर्स करूंगी, लेकिन अभी मुझे थोड़ा रुक के करना पड़ेगा, क्योंकि अभी थोड़ा इतना अभी अपने एक वो होते हैं ना, फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा भी ठीक नहीं है सर. तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पैसों से सर मैं मास्टर्स करूँ. साथ ही साथ सर, जितना भी मैं C10 न्यूज में सीख रही हूँ, जितना भी प्रैक्टिकली मैं वर्क सीख रही हूँ, उस चीज को सर मैं हमेशा याद रखूं और आगे उस चीज को मैं इम्प्लीमेंट करूं. सर हाँ सर, मैंने जब C10 में जब अपना इंटरव्यू दिया था, तो मुझे ये था कि मुझे एकदम एंकरिंग के लिए ये लोग बोल देंगे आप एंकरिंग कर लो. सर मेरा वॉइस टेस्ट लिया इन लोगों ने, मैंने बोला और मैंने सर अच्छे से बोला, लेकिन थोड़ा 1-2 शब्दों में जो मेरा उच्चारण था वो थोड़ा मतलब अजीब था. तो उन्होंने मुझसे बोला आप थोड़े इन शब्दों पे वर्क करो. जहाँ पे भी हार्ड वर्क्स आ रहे थे, मैं वहाँ पे हार्ड वर्ड्स आ रहे थे, मैं वहाँ पे बहुत अटक रही थी, उस पे वर्क करो. लेकिन अभी जो मेरा मेन रोल है सर, मैं अभी खबरें बनाती हूँ. जो भी मेरे को बेसिकली बॉलीवुड न्यूज दे रखा है उन लोगों ने, मेरा बॉलीवुड का सारा काम रहता है. तो मेरे को सर बॉलीवुड की न्यूज बनानी होती है सारी. हम 25 न्यूज बनाते हैं, 25 पैकेज बनाते हैं हम न्यूज के. तो उसमें हम क्या है कि जैसे हम ये नहीं करते कि हमने एबीपी न्यूज से हमने कुछ न्यूज का सोर्स लिया, हमने कट कॉपी पेस्ट मारा. हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते. हम क्या करते हैं, हमने न्यूज निकाली और फिर हम उसको सर टाइप करते हैं, अपने उन शब्दों में टाइप करते हैं, ताकि एंकर जो है जब वो रीड करे तो लोगों को समझने में आसानी रहे कि रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की जैसे अभी शादी होने वाली है, तो वो न्यूज जो है वो लोग उसको रिलेट कर पाए और शब्दों को समझ पाए. सिमिलरली सर हाँ सर, क्या होता है कि जैसे हम जनरली ये करते हैं कि हम हार्ड शब्दों का जब यूज करते हैं, तो जब हम वहां पे कैमरे में बोलते हैं तो सर हम अटक जाते हैं. कोई भी होगा चाहे एंकर, तो सर अटकेगा ही अटकेगा. साथ में कोई बात नहीं प्राची, there is a long way to go. अभी तो it's too early. Everybody needs time for his or her growth. तो अभी अगर if you are on the track
and if you सर have अभी preference, मेरा ये है कि मुझे अभी बहुत कुछ करना है, सिर्फ मेरा मकसद C10 न्यूज तक ही नहीं है, क्योंकि सर ये एक छोटा चैनल है जिसके बारे में लोग जानते नहीं है, लेकिन एबीपी न्यूज आज तक में जाने के लिए सर इन छोटे चैनलों से पहले आप एक्सपीरियंस गेन करो, उसके बाद फिर इन चैनल्स में जाओ। क्योंकि जनरली सर होता क्या है कि जितने भी आप बड़े चैनल्स में जाओगे वहां पे आपको कोई इतना डिटेल में नहीं समझा पाएगा, लेकिन छोटे चैनल्स में क्या होता है लोग इतना नहीं देखते हैं, तो आप वहां पे सीख जाते हो, आपकी सर भी आप पे फोकस करते हैं, वहां पे मैम भी आप पे फोकस करती हैं। तो सर ये मेरा अब तक का जो एक्सपीरियंस रहा है C10 न्यूज में, लेकिन मेरे को ये रहता है कि मुझे सर बहुत कुछ करना है लाइफ में, अपने कॉलेज का नाम भी मुझे बहुत आगे ले जाना है, और जैसे कहते हैं ना, मैं चाहती हूँ मेरी लाइफ के ऊपर सर एक बायोग्राफी भी लिखे, मतलब कोई लिखे मेरी लाइफ के ऊपर बायोग्राफी। तुम तो अच्छा है, वैसे लोग 5 साल 10 साल की प्लानिंग करते हैं, तुम सीधा 30-40 इयर्स की प्लानिंग करके सर बैठे। मैं एक्चुअली सर ज्यादा सोचती हूँ, मेरे घर वाले भी बोलते हैं कि तुम बहुत सोचती हो, इतना नहीं सोचना चाहिए, अभी जो प्रेजेंट है उस पे फोकस करो, पास्ट फ्यूचर तुम सब कुछ सोचती हो। हाँ तो ठीक है, तो अपने घर वालों की बात मानो, वही ठीक बात कह रहे हैं। हाँ जी ठीक सर। है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नंदिनी, एनी फाइनल वर्ड दैट यू वांट टू से, एनी सच एक्सप्रेशन दैट यू वांट टू मेक व्हिच आई हैवंट आस्क्ड, बट इफ यू वांट टू से दैट। सर बेसिकली मैं अभी बहुत शॉर्ट में बोलूंगी कि एक चीज, कॉलेज लाइफ चल रही है यहाँ पे हम सबकी, तो आप क्लास में अगर जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, तो अपने आप को प्लीज ये रेजिस्ट करके मत बैठो कि टीचर आएगा, अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, कुछ नहीं आता। जस्ट अपने आप को पुश करना पड़ता है, धक्का मारना पड़ता है कि कर लो, खराब होगा, बहुत खराब होगा, पर कम से कम आप उससे सीखोगे, यू विल गेट एक्सपीरियंस। तो बस वो चीज अगर आप दिमाग में लेके चलोगे ना कि मुझे सीखना है, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। और प्लानिंग तो सर मेरी आगे की नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कर ही नहीं रखी। बस मुझे ये है कि हर दिन जो जी रहे हो आप जिस उस चीज में ना अपना फुल एंड फाइनल रखो, क्योंकि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा है, फ्लोइंग विद द विंड इज आल्सो गुड फॉर करियर एंड ग्रोथ। और तुम्हारी तरह के पॉजिटिव स्टूडेंट्स ही चाहिए हम लोगों को डीएमई मीडिया स्कूल में। तो अपनी ये पॉजिटिविटी जो है इसको स्प्रेड करना जारी रखो, उससे तुम्हारा भी, हम सबका, सभी का फायदा है। थैंक यू सर। Okay, so Sajal, what will you say finally in this program? There is a big ocean of opportunities and learning experiences. We just need to learn how to swim and take a deep dive into it. So thank you all three for participating in this program and to make this show so interactive, so lively. And there are a lot of things which each one of us can learn. Those who are in the session, they can also learn. And since this program will remain on the YouTube, so those who are not there in the session, they can watch this program later. The students and the teachers in DME Media School and outside also, because once it's on the YouTube, it's in the public domain. And I think there are a lot of such things which everybody would like to learn. And I repeat, as I said, the positivity that is essential for each one of us to move ahead in life and to learn how to work in a team, and also to also learn, as Nandini said, how to remain grounded when you grow in life. Because when you are working, you are not working for yourself only. You also owe to your family members. You also owe to society. So you must always keep in mind that whatever you are doing, wherever you are doing, that should contribute something, that should give something more to the society. With these words, I stop here. And that is all in today's edition. Thank you all.